Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 45 इतं भूतानुभवोऽयम् अभिमन्युसुतो नृप यस्य पालायत शौनिं यूयं सत्राय दीक्षिताः। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। तो ये आखिरी श्लोका है इस अध्याय का, 17वें अध्याय का आखिरी श्लोका है। तो Maharaj Parikshit, the son of Abhimanyu, is so experienced that by dint of his expert administration and patronage, it has been possible for you to perform a sacrifice such as this. Purport: the Brahmanas and the Sannyasis are expert in the spiritual advancement of society, whereas the Kshatriyas or the administrators are expert in the material peace and prosperity of human society. But both of them are the pillars of all happiness, and therefore they are meant for full cooperation for common welfare. Maharaj Parikshit was experienced enough to drive away Kali from this field of activities and thereby make the state receptive to spiritual enlightenment. If the common people are not receptive, it is very difficult to impress upon them the necessity of spiritual enlightenment. Austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, the basic principle of religion, prepare the ground for the reception of advancement in spiritual knowledge. And Maharaj Parikshit made this favorable condition possible. Thus, the rishis of Naimishan were able to perform the sacrifice for the 1,000 years. In other words, without state support, no doctrines of philosophy or religious principle can progressively advance. There should be complete cooperation between the Brahmanas and the Kshatriyas for this common good. Even after the Maharaj Ashoka, the same spirit was prevailing. Lord Buddha was sufficiently supported by King Ashoka, and thus this particular cult of knowledge was spread all over the world. Thus ends the Bhakti Vedant purport of the first canto, 17th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Punishment and Reward of Kali. Hare Krishna, Mukam Karoti Vatalam, Pangum Langate Girim, Yat Kripatam Ahamande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam, Shri Chaitanya Vishwaram. So Maharaj Parikshit, the son of Abhimanyu, is so experienced that by the dint of his expert administration and patronage, it has been possible for you to perform a sacrifice such as this. तो हरे कृष्णा। तो जो नैमिषारण्य में ये जो श्रीमद् भागवतम का जो पाठ का जो यज्ञ हो रहा है, तो इसका पूरा श्रेय है किसको दिया जा रहा है? महाराज परीक्षित को। और यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में वही लिख रहे हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत या फिर ये आध्यात्मिक आंदोलन अगर इस समाज में अगर प्रचलित करना है या जन सामान्यों बीच लेके जाना है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समाज के जो लीडर्स है या जो
जो मतलब उच्च पदवी पे है, जो समाज के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो उनका और जो आध्यात्मिक प्रचार करते हैं, हाँ, जैसे हमारे सन्यासी साधु, तो उन लोगों के बीच में बहुत जरूरी है कि तालमेल रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लीडर लोग केवल अपने फायदे के लिए, मतलब जैसे आजकल हम देखते हैं कि किसी को चुन के आना है और उनको पता है कि एक वर्ग, समाज के एक वर्ग लोगों को अगर हम थोड़ा सा फैसिलिटी देंगे तो उनके हेल्प से मैं चुन के आ सकता हूँ या मैं नेता बन सकता हूँ। हाँ, उनको आध्यात्मिक उस समाज या उस वर्ग के आध्यात्मिक प्रगति का उनको कोई लेना देना नहीं। ये जो मैं आज की बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले इसलिए हर राजा को राज ऋषि कहा जाता था, क्योंकि वो क्षत्रिय का धर्म भी निभाते थे, और वो क्षत्रिय का धर्म निभाते निभाते जो जीवन का सर्व जो श्रेष्ठ जो गोल है, लक्ष्य है आध्यात्मिक जीवन का, उसके ऊपर भी वो जोर देते थे। तो पहले के राजा लोग जो थे, कोई भी फैसला या जो भी समाज के लिए या अपने प्रजा के लिए जो कुछ भी वो फैसला लेते थे, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होता था, मतलब भगवान को केंद्रित रख के। जैसे अब हम लोग देख सकते हैं कि आज के इसमें हमको अगर कुछ भी आध्यात्मिक कुछ करना है कार्यक्रम, तो कितने सारे हमको परमिशन लेने पड़ते हैं, कितने सारे, और कभी कभी तो काफी टाइम मना भी किया जाता है कि नहीं, मतलब इतना आसान नहीं है आज के। इवन दो हम भारत देश में रहते हैं, जहाँ पे वैदिक संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण, मतलब मैक्सिमम जो परसेंटेज लोग यहाँ पे है, जिसको हिंदू कहा जाता है, जो वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं, फिर भी भारत देश में भी आजकल इतना आसान नहीं है कोई भी कार्यक्रम, मतलब बड़े स्तर पे करना। हॉल वगैरह ठीक है, लेकिन अगर बाहर अगर कोई रथ यात्रा करनी है या, तो कितने सारे परमिशन और कभी कभी मनाही भी होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले महाराज परीक्षित जैसे राजा होने के कारण उनका पूरा जो क्या कहते हैं लक्ष्य होता था कि किस तरह से राज्य इस तरह से चलाया जाए कि पूरी प्रजा भगवान के मतलब भगवत प्राप्ति हो। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महाराज परीक्षित का जो मतलब महाराज परीक्षित इतने अच्छे राजा थे, और वो क्या, मतलब उनका पूरा जो वंश था, पांडव से फिर अभिमन्यु, फिर महाराज परीक्षित, वो पूरे मतलब वो क्षत्रिय बाद में थे। हाँ, वो क्षत्रिय केवल एक एक्सटर्नल उनका एक क्या कहते हैं पदवी है, लेकिन वो सब लोग भगवान के भक्त पहले थे, और उनका वही लक्ष्य था कि प्रजा को किस तरह से भगवान भक्ति में लगाया जाए। और प्रभुपाद वही लिखते हैं कि अगर इस तरह का अगर तालमेल रहा, राजा भी भक्त है और प्रजा भी जैसे राजा कहते हैं वैसे, तो पूरा जो क्या कहते हैं जीवन, मतलब पूरा वो समाज जो है, वहाँ पे कोई आपको मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभी जब समाज में ज्यादा पाप बढ़ते हैं तो अकाल आता है। मतलब आदि दैविक शक्ति के कारण कभी कभी अर्थक्वेक, अकाल पड़ता है, अनाज नहीं उगता है, ऐसा सब। लेकिन अगर दोनों प्रजा भी और राजा भी दोनों अगर भगवत भक्ति करते करते अगर जीवन निवारण कर रहे, तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे मतलब कम्युनिटी या ऐसे समाज में देयर इज ऑलवेज प्रॉस्पेरिटी। वहाँ पे आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि धान्य मतलब जो भी जरूरतों की चीजें है वो आपको भरपूर मिलेगा। और यही हमारे भी जीवन का लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए। ओके, एक्चुअल प्रभुपाद यहाँ पे वही लिखते हैं कि एक्चुअल क्या कहते हैं समाज को क्या चाहिए, ऐसे यज्ञ होते रहने चाहिए। और प्रभुपाद की कृपा से ये जो अभी कलयुग में सबसे आसान यज्ञ है, नाम संकीर्तन यज्ञ, ये हर जगह हो रहा है। हाँ, हर जगह यज्ञ हो रहा है। तो हम लोगों को इसका बहुत लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि
ये जो कली जो पूरे दोष का ये कलेर दोष निधे राजन, अब यहाँ पे कलयुग में हर चीज दोषों से भरा पड़ा है। उसमें केवल एक महान गुण क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य। तो जैसे यहाँ पे यज्ञ की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, और इतना आसान। और ये जो अभी नैमिषारण्य में ये जो सुत गोस्वामी जो यहाँ लिख रहे हैं, हम लोग ये यज्ञ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो राजा है परीक्षित महाराज, उनके कारण, क्योंकि उन्होंने इस तरह का एक वातावरण बनाया है जहाँ पे हम लोग ये यज्ञ कर सकते हैं। और एक्चुअली हम लोगों को भी अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं कि कार्तिक महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने में भी जैसे अभी यहाँ पे सब लोगों के क्या कहते हैं, मतलब ऑस्पिशियसनेस, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं पावन महीना है। तो यहाँ पे अभी जो यज्ञ चल रहा है वो सारे समाज के हित के लिए कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो कार्तिक महीने में और एक हमको एक मौका मिलता है कि घर घर जाके लोगों को ये भगवान का संदेश का प्रचार करने के लिए, क्योंकि अगर आज के ज़माने में हम देख सकते हैं कि हर कोई पीड़ित है, तो इस कार्तिक महीने का हम लाभ कैसे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे नैमिषारण्य में जैसे यज्ञ हो रहा है, तो हम भी ऐसे लोगों के घर घर जाके उनको बता सकते हैं कि ये महीना बहुत ही पावन महीना है, और केवल एक जो दामोदर भगवान का जो और एक ये है नाम दामोदर, तो इसको आप ये पूरे महीने में दीप दिखाने से आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, आपका जीवन आध्यात्मिक स्तर पे आप प्रगति करोगे। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है जो हम सबको मौका मिला है, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे हमारा भी फायदा होगा क्योंकि भगवान भी बहुत ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरा प्रचार करता है, जो मेरे बारे में सबको बताता है, उससे ज्यादा प्रिय कोई भी भक्त इससे ज्यादा मेरे लिए प्रिय नहीं है। तो एक्चुअली वैष्णव होने का अर्थ ही यही है, पर दुख दुखी। और पर दुख दुखी तो एक बात हो गया, लेकिन वो दुख से कैसे निवारण करे। हमको पता है कि हर कोई दुखी है, हाँ, तो हम उस दुख में कैसे शामिल हो सकते हैं, जब उनको जाके ये बता के कि ये जो कलयुग है ये यहाँ पे तो दुखी रहेगा, लेकिन इससे आप सुखी हो सकते हो अगर कृष्ण की भक्ति करोगे। हाँ, तो केवल पर दुख होने से कोई फायदा नहीं, उनको उसका ज्ञान भी देना पड़ेगा कि वो ये दुख से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। अभी ये जो यज्ञ जो कर रहे थे वो लोग, केवल ऐसा नहीं कि एक क्या कहते हैं एक रिचुअल, हाँ, एक रिचुअल है, चलो यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ का उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि ये यज्ञ करने से आध्यात्मिक स्थिति उत्पन्न हो, हाँ, आगे चल के जो कलयुग आने वाला है आध्या और जितने भी जीव है उनका उद्धार हो। तो यही होता है यज्ञ का मेन रीजन। ऐसा नहीं कि आहुति दे रहे हैं और एक यज्ञ संपन्न हो गया और हो गया, नहीं, उसका रिजल्ट मेन चीज है। और सबसे बड़ा रिजल्ट क्या होना चाहिए कि लोगों का आध्यात्मिक जीवन में रुचि बढ़े, हाँ, वो आकर्षित हो भगवान के प्रति और वो भी इसको अपनाए। तो ये जो अभी दामोदर मास है ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा एक प्रभुपाद की कृपा से और प्रभुपाद के जितने भी शिष्य है उनकी कृपा से एक बहुत ही अच्छा एक मौका है। ये भी एक तरह का यज्ञ है, हम जो दामोदर आरती लोगों के घर जाके करके उनको भगवान की लीलाओं के बारे में बता के, और इसी दौरान ये जो कलयुग का जो प्रोसेस है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हाँ, और एक सब और हमारा जो भगवत प्रचार ये करने का हमको बहुत ही बड़ा एक मौका है। तो हम भी जैसे नैमिषारण्य में यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, तो इस महीने में हम भी कुछ कर सकते हैं, हाँ, कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट हम कुछ लोगों को जो किसी को पता भी नहीं है कि ये कृष्ण भावनामृत क्या है, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, एटलीस्ट हम कुछ लोगों को एटलीस्ट उनके कानों में एटलीस्ट सुना सकते हैं। अगर एक जीवन में अगर वो उसको अपनाए भी नहीं, एटलीस्ट हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने इस जन्म में कुछ तो सुना
हो सकता है इसका फायदा उनको अगले जन्म में, क्योंकि आखिर में तो भगवान के ऊपर और कि वो कृपा उनको कब देना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हम तो प्रयास कर सकते हैं। ये जो नैमिषारण्य में हो रहा है, इससे हम लोग थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं, एक वी कैन टेक, इससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मतलब 5,000 साल पहले नैमिषारण्य में एक यज्ञ हुआ था। तो एक्चुअली जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि यू शुड फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ आवर प्रीवियस आचार्य। तो ये जो कार्तिक महीना है, तो इसमें हम लोगों को वही करना है। जैसे यहाँ पे यज्ञ हुआ था, तो इसी तरह से हमको यहाँ पे एटलीस्ट कुछ लोगों के घर जाके ना, जिनको पता नहीं है, उनको कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और परीक्षित महाराज ने जैसे कली को रोका अपने राज्य में घुसने से, तो उस तरह से कुछ लोगों के घर में तो हम ये जो उनका जो भौतिक जीवन है उसको आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करने में हम लोग कुछ प्रयास कर सकते हैं। जैसे पूरा वो लीला हमको पता है, 2 उंगली, जो एक है प्रयास और एक कृपा, तो हम अपना प्रयास कर सकते हैं। और अगर हम प्रामाणिकता से प्रयास करेंगे और जो सुनने वाला है, जो घर पे जिसके घर में है, अगर वो भी प्रामाणिक है, तो भगवान की कृपा जरूर होगी। तो इस तरह से ये जो नैमिषारण्य का जो यज्ञ पहले हुआ था, उसको हम भी अपने स्तर पे, अपने यथाशक्ति हम भी कर सकते हैं। ये भी एक तरह का यज्ञ ही है। और क्या होगा, और जितने भक्त जुड़ेंगे वो मतलब उनका जीवन एक नया शुरुआत होगा। तो ये प्रभुपाद का पूरा आंदोलन ही वही है। तो यहाँ पे ये जो अध्याय समापन हो रहा है, तो इस वही कार्तिक महीने में, और ये यज्ञ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह से महाराज परीक्षित जैसे राज ऋषि होने के कारण मतलब जितने भी साधु संत उस वक्त थे, उनको भगवान की भक्ति करने या ऐसे यज्ञ करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि महाराज परीक्षित का उनको पूरा सहयोग था। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित खुद भक्त होने के कारण उनको पता था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और उनका लक्ष्य क्या है, और पूरा समाज को इसका अगर फायदा होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे राजा जब होते हैं, तो वो अपनी प्रजा के अल्टीमेट बेनिफिट, मतलब आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऐसे यज्ञ में सहयोग करते हैं और अपना योगदान देते हैं, ना कि आज के जैसे जहाँ पे केवल भौतिकवादी भौतिक प्रजा भी भौतिकवादी है। उनको एडवांसमेंट किस में चाहिए, मटेरियल साइंस में, या फिर इंद्र तृप्ति में, कैसे हम ज्यादा इंद्र तृप्ति करें, ऐसे एडवांसमेंट। और राजा, और जो आज के जो राजा या फिर नेता है, उनको केवल अपना, उनको धन संपन्न करना है और उनको भी अमीर बनना है। तो वो ऐसे भौतिकवादी प्रजा को गुमराह करके जो उनको जो चाहिए वो देते देते अपना फायदा कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, अंधा यथा अंधेर उपनीय मानस। तो राजा भी, मतलब प्रजा भी अंधी, राजा भी अंधा। तो दोनों को पता नहीं कि सबसे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो एक दूसरे को वो लोग धोखा देके लास्ट में गड्ढे में जैसे गिर जाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रभुपाद की कृपा मिली है। तो ये जो 5,000 साल पहले हुआ यज्ञ हम लोग आज भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये दामोदर मास, क्योंकि अगर आप किसी को कहेंगे कि ये महीना अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग पीड़ित है, तो वो लोग ऐसे रुकते हैं कि कहीं तो कुछ अच्छा हो जाए हमारे जीवन में। तो अगर आप किसी को बताएंगे कि ये महीना अच्छा है, अगर हम आपके घर में आके दामोदर आरती करके कथा बताए, तो कोई ना नहीं कहेगा। और उनको अगर बताएंगे इसमें कोई मतलब कुछ लोग डरते हैं कि अरे अगर मैं ये साल करूंगा तो हर साल करना है क्या, मतलब ये बंधन है क्या। तो हम उनको बता सकते हैं इसमें बंधन कुछ नहीं है। अगर आपने ये साल किया और अगले साल किसी वर्ष आप कर भी नहीं पाए, तो इसका ऐसा नहीं कि आपको कुछ बुरा होगा या कुछ मतलब एक बंधन जैसा, मतलब अभी हर साल करते ही रहना, ऐसा कुछ नहीं। हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में देयर इज नो बंधन, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप हर बार करोगे तो उसमें आप ही का फायदा है। तो कोई मना नहीं करेगा। तो हमको भी जैसे नैमिषारण्य के ऋषियों की तरह, जो हम
जन सामान्य लोगों के हित के लिए वो यज्ञ उन्होंने जो किया था, हमको भी उसी मूड में, उसी चेतना में हमको भी इस महीने में सोचना चाहिए कि कितने सारे पीड़ित लोग हैं, क्यों ना हम ऐसे सारे लोगों के घर जाके दामोदर का ये जो कथा करे, दीप दान करे, ये भी यज्ञ ही है। हम कहते हैं ना, आप एक दीप दिखाना भगवान को मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। हम भगवान को केवल एक बार दीप दिखाना, तो हम लोग तो डेली सुबह शाम दिखा ही रहे। अगर हम औरों को भी अगर इसका फायदा देंगे तो सोचिए भगवान कितने खुश होंगे। मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ केवल एक दीप दिखाने से। हाँ, तो हमको भी इसी तरह से हमको भी थोड़ा, जैसे हम कहते हैं ना, वैष्णव पर दुख दुखी, तो अभी हमको पर दुखी होते हुए उनको सुखी भी करने का प्रयास, खुद भी सुखी होना है, और हमारे जितने भी जान पहचान, जो हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त मित्र, हाँ, हमारे परिवार जन, हाँ, ये बहुत ही अच्छा मौका है, प्रचार भी होगा। अगर वो लोग भक्त भी ना बने, एटलीस्ट इस कार्तिक इतने पावन मन में, क्योंकि ये जो महीना इतना अच्छा है कि भगवान मतलब थोड़ा सा भी वो लोग कुछ करेंगे तो उनका उद्धार ही होगा। तो अगर मतलब आगे उन्होंने अगर एक ही दिन, जिस दिन हम लोग गए उसी दिन अगर दीप दिखाया, उसके बाद में नहीं दिखाया, फिर भी इतना पावन महीना है कि भगवान उसको याद रखेंगे कि एटलीस्ट एक दिन उसने मेरे भक्त का सुन के उसने घर में उनको बुलाया और ये पूरा दामोदर आरती करने का उन्होंने योगदान दिया, तो भगवान उसको भी याद रखेंगे। तो हो सकता है ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में, या फिर उसी घर में कोई अच्छा भक्त पैदा हो जिसके कारण बाकी सारे लोगों को डर जाए। तो ये जो अभी ये जो अध्याय समाप्त हो रहा है उसका हमको एक क्या कहते सार अगर लेना है, तो जैसे परीक्षित महाराज जैसे राजा, शरण में जो यज्ञ करने वाले जो ऋषि, तो हमको भी उन्हीं के भाव में, उन्हीं की चेतना में हम लोगों को भी इसी तरह से क्या करना है, अपनी कम्युनिटी, मतलब हम केवल हम भक्तों के बीच में ही भक्ति नहीं, मतलब बाहर जाके मतलब बाहर जाके अभी बहुत हमको स्कोप है प्रचार करने के लिए। बहुत स्कोप है, कितने सारे लोग हैं जो अभी तक भक्ति में नहीं है, जिनको पता नहीं है। बहुत स्कोप है। जैसे श्री वल्लभ प्रभु ने स्टार्ट किया था दामोदर देश में, पहले साल 1000, ऐसे करते करते अभी तो कितने सारे हजारों घर में दामोदर आरती होती है। उसी तरह से हम भी अपने यहाँ पे यथाशक्ति ये यज्ञ कर सकते हैं। और इस कली युग में कली का प्रभाव बढ़ने से हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। कितने सारे भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत में आने के बाद पूरी तरह से चेंज हुए, तो ऐसे और भी कितने सारे लोग हैं जिसको हम लोग प्रयास, मतलब जैसे हमको आचार्य ने जो ज्ञान दिया है वही ज्ञान देके हम प्रयास कर सकते कि वो भी चेंज हो। तो जो नैमिषारण्य में हुआ था वो हम अभी भी उसको दोहरा सकते हैं। और ये जो कलियुग जो बहुत ही तेजी से 4G 5G स्पीड से जो बढ़ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होते जा रहा है उसको हम एटलीस्ट कुछ हद तक उसको कम कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, इवन अगर एक कोई भक्त बना मेरे इस आंदोलन से और भगवत धाम चला गया, तो ये मेरा पूरा जो आंदोलन है उसको मैं सक्सेसफुल सोचूंगा। लेकिन प्रभुपाद की कृपा ऐसे है कि एक क्या, हजारों हजारों लाखों लाखों भक्त बने हैं। तो उसके अंदर हम भी थोड़ा प्रयास करके प्रभुपाद की मतलब प्रभुपाद का जो इच्छा है उसको हम पूर्ति करने में सफल हो सकते हैं। और प्रभुपाद ने एक बार ऐसा भी कहा था कि देखो मैं इतना वृद्ध व्यक्ति हूँ, और देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना मतलब कहा, मतलब हर जगह प्रचार मैंने कर दिया, वो भी 70 साल की आयु में एक वृद्ध व्यक्ति। और फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग इतने नौजवान हो, सोचो तुम लोग क्या कर सकते हो, यू कैन एस्टेब्लिश धर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यही हमको करना है। तो महाराज परीक्षित के अनुयायी हम, मतलब ये पूरे वैष्णव के अनुयायी होते हुए, जैसे महाराज परीक्षित ने इस कली को रोक दिया था, अभी हमको भी प्रयास करना है कि कुछ परिवारों के घर में एटलीस्ट इस कली को बढ़ने से हम रोक सकते हैं।
क्योंकि हर जगह कली फैला है अभी कलयुग में। बट चैतन्य महाप्रभु की बहुत कृपा है, जिससे इस कलयुग में भी हम इस कली का प्रभाव बढ़ने से रोकना, क्या मतलब पूरी तरह से उसको, मतलब कुछ लोगों के जीवन में उस कली का प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। जैसे हम अपने भी जीवन में देख सकते हैं कि पहले हम कैसे थे और अभी कैसे है, मतलब काफी, मतलब कुछ तो परसेंटेज कम हो गया है हमारे जीवन में कली के प्रभाव का। तो हमको भी अभी इस यज्ञ को आगे बढ़ाते रहना है। ये भी एक यज्ञ ही है और इससे सबको फायदा होगा। तो प्रभुपाद का अगर तात्पर्य हम देखेंगे तो वही लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे पहले जो राजा थे उनकी वजह से समाज भी उनके, और जो साधु लोग जो इस भगवत प्रचार करना चाहते हैं उनका तालमेल था। हाँ, तो दोनों एक दूसरे को मदद करते थे और पूरा समाज का भला होता था। तो अभी हम लोगों को नेताओं से तो अपेक्षा है नहीं, हाँ, लेकिन एटलीस्ट हमारे ये जो कम्युनिटी इतना स्ट्रांग होते जा रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हमें अपने स्तर पे वी हैव टू रीच आउट टू पीपल। और ये कार्तिक मास सबसे अच्छा मौका है। तो और हमको इस यज्ञ को आगे बढ़ाते रहना है। तो हरे कृष्णा, मैं यहाँ रुकता हूँ। दंडवत प्रणाम। तो आज ये अध्याय समाप्त होता है, यहाँ पे इस अध्याय का समापन होता है। तो हम कल से 18वें अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उद्धव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, वंडरफुल क्लास। बहुत ही अच्छी तरह से आपने जो है पॉइंट्स बताई और कनेक्ट किया, जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने बताया। एक मतलब बात अभी याद आ रही है, अभी आप जो है फ्लाइट से ट्रेवल करके अबू धाबी आए थे और फिर वापस जो है आपके मतलब जो गोवा गए, तो उसके अंदर आपने सुना होगा कि वो जो एरोस्टेसेस होती है वो जब भी फ्लाइट स्टार्ट होता है तो आपको इंस्ट्रक्शंस देती है और समय कहती है कि अगर ऑक्सीजन का जो है ये अपना प्रमाण कम हो गया तो ऑटोमेटिकली ऊपर से मास्क गिरेगा और अपने आपको जो है आपके फेस को कवर करना है। अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो बच्चों को पहले नहीं देखना है, पहले अपने आप को देखना है। अगर आप सही हो गए तो फिर आप बच्चों को देख सकते हो। तो ठीक उसी तरह पहले जैसे अगर हम प्रचार करने जाते हैं तो प्रचार करने से के साथ साथ हमारे पास जो अस्त्र और शस्त्र होने चाहिए वो है कि हमारे पास इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि हम किसी को जो है उस ज्ञान को बांटे। अगर ज्ञान बांटने से पहले हमारे पास जो है ये अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, जो नॉलेज होगा तो हम दूसरों को बांट सकते हैं। और फिर उसके ऊपर जो है जैसे आपने सही बताया कि ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए। ठाकुर जी की कृपा होगी तो कृपा होगी तब जो है जो हमारी वाणी के अंदर जो है वो वजन होगा, हमारी बातों के अंदर वजन होगा, और जिसके लिए हम प्रचार कर रहे हैं और जिसको हम प्रचार कर रहे हैं उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक बात मेरे मतलब जो आपकी क्लास सुनते सुनते आई तो वो आई वांटेड टू शेयर। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभु। थैंक यू। यस प्रभु, रियली, मतलब एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने यहाँ पे। यस, थैंक यू प्रभु। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। जय। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। और कल सब लोगों को मतलब गुरु महाराज के दर्शन भी हुए। तो जय, आई थिंक एवरीबॉडी इज चार्ज्ड अप। हरे कृष्ण। That was one wonderful thing, bro. बहुत अच्छा, ऐसा मतलब आई डोंट नो, मतलब एक फेस्टिवल के जैसे ही लग रहा था। और मतलब जस्ट मतलब वहाँ पे उपस्थित रहना भी सो वंडरफुल। मतलब सब जगह पे पीपल आर सो एंथुसियास्टिक। कुछ बहुत सारे पुराने डिवोटीज जो अपने दुबई के थे, अबू धाबी के थे, बहुत से भक्त लोग वहाँ पे मिले। तो इट वाज लाइक ए फेस्टिवल। जब महाराज आए तो जस्ट मतलब जो वहाँ पे जो गर्जना घोषणा एंड सो मच एंथुजियाज्म था वो देख के इट वाज सो नाइस टू सी दैट। और फिर महाराज का लेक्चर जो था
तो इट वाज रियली वेरी वंडरफुल। खाली मतलब एक चीज जो मेरे को बहुत टच कर गया, महाराज ने जो कहा कि मैं मतलब देख रहा था महाराज इस मटेरियली देखें तो इस सच्चे मतलब उनका कंडीशन की इज नॉट एबल टू वॉक एंड इज नॉट, बट स्टिल ही इज सो मच एंथुसियास्टिक। इतना मतलब प्रभुपाद जी का अपने गुरु का वचन का जो पालन करने के लिए सो मच एंथुसियास्टिक। और उन्होंने एक बात कहा जब वो दीक्षा दे रहे थे, तो बोले कि जो मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर तुम लोग अगर नहीं करोगे बराबर तो आई हैव टू स्टे बैक। सो फिर भी मैं ये रिस्क ले रहा हूँ तुम लोगों के लिए, एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग जो है अपना काम, जो अपना नियम है, अपना जप है, सब सही से करोगे। इफ नॉट देन आई हैव टू स्टे बैक। दैट वाज रियली वेरी टचिंग। और इसीलिए मतलब नॉट ओनली महाराज डिसाइबल, हर कोई जो इस्कॉन से जुड़ा, किसी भी महाराज का डिसाइबल, ही हैज टू रियली सिंसियरली ही हैज टू फॉलो ऑल द rules and regulations, do his japa sincerely. Japa is most important, japa sincerely करना है। So that was really very very touching, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा सुनने के लिए वो। I just want to share that. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। गोपी मनोहर प्रभु ने जब ये बात बताई उससे मतलब वो टाइम पे गुरु महाराज ने ये भी बोला था कि आई वोंट कि आप सब लोग गोलोक वृंदावन जाओ, राइट ना प्रभु जी? Yes, हरे yes, कृष्णा। माता जी, yes। न बोल रहे थे स्वर्ग कि में मैं न चाहता नरक में, हूँ हर आई कोई वोंट कि आप सब लोग गोलोक वृंदावन हर जाओ। कोई या मतलब महाराज ने वही बोला था कि ना यहाँ पे ना वहाँ पे, आप लोग सब गोलोक वृंदावन जाओ और मुझे चाहिए कि आप सब जाओ करके। बहुत हार्ट टचिंग था वो जो 2-3 पॉइंट्स थे। एंड वाकई में जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने बताया कि कोई भी महाराज के डिसाइपल हो, और हमारे गुरु महाराज ने जो कल बताया वो सब महाराज को मतलब पता है एंड वो उन्होंने प्रभुपाद से सीखा होगा, और जो भी है तो वो हर डिसाइपल को वो ध्यान में रखना चाहिए। और जब कोई भी महाराज ऐसा बोलते हैं ना तो बहुत ही दिल को छू जाता है। कल इतनी पब्लिक थी, ऐसा लग रहा था हम लोग रीजेंट स्कूल में थे, और बहुत ही मतलब कितने, जैसे प्रभु ने बताया कि एक रिस्क की बात हो जाती है जब कोई महाराज किसी भी भक्त का मतलब एक जवाबदारी लेता है। ये ज़माने में कोई किसी की जवाबदारी नहीं लेता है। किसी का कुछ पार्सल लेना होगा या कुछ चीज़ लेनी देनी भी होगी ना, इवन किसी को पैसा लेने देने में भी कोई इतनी जवाबदारी नहीं लेता है। और ये तो कितनी बड़ी जवाबदारी है कि महाराज ये नहीं सोचते कि मेरा क्या हिसाब होगा। वो सोच रहे थे कि उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे चाहिए कि आप सब लोग गोलोक वृंदावन जाओ, तो इसलिए मैं आप लोग को दीक्षा दे रहा हूँ। तो बहुत हार्ट टचिंग था एंड रियली बहुत हम लोग नसीब वाले हैं। एंड आई थिंक सर्वदेव गिरधारी प्रभु ज़्यादा, क्योंकि उनको 2 महाराज के दर्शन हुए हैं। जहाँ तक मुझे पता है, इस ओलेस भक्ति विकास साई महाराज का कल जू टेम्पल में लेक्चर था, तो प्रभु साथ वहाँ पे थे, तो प्रभु के 2 महाराज के दर्शन हुए। एंड कल सत्यराज प्रभु भी आए थे, मैं थी, गोपी मनोहर प्रभु एंड सर्वदेव गिरधारी प्रभु, जी पावन प्रभु, हम सबके गुरु महाराज के दर्शन हुए। तो भगवान की दया से कार्तिक वाले महीने में दर्शन हुए, तो भगवान करे हम और अच्छे से भक्ति में आगे बढ़े।